Hello everyone, let's start the question. Question says that a paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube. Its magnetic susceptibility at temperature 350 Kelvin is 2.8 into 10 to the power minus 4. So its susceptibility at 300 Kelvin is, so we have to find out the susceptibility at 300 Kelvin. So there is a relation between, let's say this is susceptibility X, then there is a relation between susceptibility and the temperature, and that is susceptibility is directly proportional to 1 by the temperature. Okay, so if we want a relation between the two temperature, we can write x1 by x2 equal to 1 by T1 by 1 by T2, or we can write x1 by x2 equal to T2 by T1. Okay, now if we substitute the values, the x1 is 2.8 into 10 to the power minus 4, and we have to find out x2. T2 is 300 Kelvin and T1 is 350 Kelvin. Okay, so from here we can write x2 equal to, if we cancel out here 0 0, okay, and with 5 we can write 5 into 6, that is 30, and 5 7 ja. Okay, so further we can write 2.8 into 10 to the power minus 4 into 7 divided by 6, and if we solve this we will get 3.26 into 10 to the power minus 4. So if we check the options, the correct option is 3.26 into 10 to the power minus 4. So we can write the correct answer is 3.26 into 10 to the power minus 4. Thank you. Hello everyone, the question says that a paramagnetic substance in form of a cube with side 1 cm has a magnetic dipole moment of 20 into 10 raised to power minus 6 joule per Tesla was when a magnetic intensity 60 into 10 raised to power 3 ampere per meter is applied. Its magnetic susceptibility is. So in this question I have to find out its magnetic susceptibility. Now we know the formula to find out the magnetic susceptibility, which we denote by chi, equals to I upon H. So if we talk about I is the magnetic intensity. So formula to find out this value, so this will be equals to, so magnetic dipole moment is 20 into 10 raised to power minus 6. So in I will be equal to, formula to find out I, that is magnetic moment divided upon volume. So magnetic moment divided upon volume. So formula to find out magnetic moment is given 20 into 10 raised to power minus 6, and volume will be 1 centimeter cube. So it will become 10 raised to power minus 6. Now it will become 20 Newton per meter square. So this value of I. Now H is the magnetic intensity. So already given I is the intensity of magnetization. So chi will be equal to, value of I is 20 divided upon H is given 60 into 10 raised to power 3. So this value is given, that is 60 into 10 raised to power 3. On solving this value we get this value as 1 upon 3 into 10 raised to power minus 3, that is equals to 3.3 into 10 raised to power
-4. So it is a unitless quantity. Hence our option is D. Hence option D is right. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है एट सम लोकेशन ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 18 टाइम्स 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, तो बी एक्स कितना दे रखा है 18 टाइम्स 10⁻⁶ टेस्ला, 18 म्यू टेस्ला। ओके, अब क्या बोला गया है, एट दिस लोकेशन मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 0.12 मैग्नेटिक नीडल है, उसकी लेंथ कितनी है 0.12, मतलब मैग्नेटिक डायपोल है, उसकी लेंथ पूरी कितनी है 0.12, एंड पोल स्ट्रेंथ कितनी है, हर एक पोल स्ट्रेंथ 1.8 एम्पियर मीटर है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट यूजिंग अ थ्रेड। तो अपने मिड पॉइंट से सस्पेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक नीडल तो वैसी होगी। ठीक है, उसका यहाँ पे साउथ पोल है, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और ये सस्पेंडेड है इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पे ये हिंज्ड है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, तो इसको बोल देते हैं बी एक्स, और एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा अर्थ का जिसको बोलते हैं बी वी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इसके अलोंग, जिससे कि ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में सस्पेंडेड है तो इसी के अलोंग होगी। ठीक है, तो बी इस तरफ हो जाएगी टोटल बी वेक्टर। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे बोला गया है कि पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, एम की वैल्यू है 1.8 एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक नीडल की लेंथ है, तो हम लोग पता है कि डायपोल की लेंथ कितनी लेते हैं हम लोग 2L, डायपोल की लेंथ 2L हो गई, तो 2L इक्वल्स 0.12 मीटर, तो L की वैल्यू कितनी होगी 0.06 मीटर। ओके, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पे सस्पेंडेड रहती है। ठीक है, इसका मतलब बी के अलोंग रहती है। टू कीप दिस नीडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड्स इज, तो कितना वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल रहे। तो इसको पहले हॉरिजॉन्टल टिका दिया होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे इसको सस्पेंड कर रखा है, और यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है जिससे सस्पेंडेड है, लेकिन बी तो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो बी वेक्टर ऐसे आ गया। लेकिन हमें पता है कि हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको टिका कर रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, और इस फोर्स से क्या कर रहे हैं लोग, इसके टॉर्क को कंपेंसेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक डायपोल किसी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, एम बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है टॉर्क वेक्टर का। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम, ये कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और बी क्या होता है, जो फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है रीजन में, तो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है कितने एंगल पे 45 डिग्री पर, तो एम और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, एम किस तरफ पॉइंट करता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो एम इस तरफ पॉइंट कर रहा है, बी और एम के बीच में कितना एंगल हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ से लिख लेते हैं टाउ वेक्टर इक्वल्स एम टाइम्स बी टाइम्स साइन 45 डिग्री। ये हो गया इस पर टॉर्क, ये टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा होगा, हमारा जो वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, जिसके लिए कितनी हो जाएगी एफ बी टाइम्स यूर लेंथ कितनी है एल। ओके, तो ये जो कैपिटल एम होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ टाइम्स जो एल है इसकी आधी लेंथ टाइम्स साइन 45, मतलब 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ वी, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया बी का, तो यहाँ पर हम लोग एफ वी की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, ट्वाइस एम अपॉन √2 टाइम्स बी। ओके, अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो हमें एफ यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू पता है, बी एक्स की वैल्यू कितनी है 18 टाइम्स 10⁻⁶ टेस्ला, और ये 45 डिग्री एंगल पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1045 डिग्री इक्वल्स बी एक्स अपॉन बी वी लिख लेते हैं इसको। ठीक है, बी वी, तो ये दोनों इक्वल होंगी, बी एक्स इक्वल्स बी वी, और हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर समेशन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 टाइम्स 10⁻⁶ टेस्ला टाइम्स √2। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है,
तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 टाइम्स m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू गिवन है यहाँ से 1.8 एम्पियर मीटर, तो 1.8 डिवाइड बाई √2 टाइम्स 18 टाइम्स 10⁻⁶ √2। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितनी आई वैल्यू 6.5, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 6.48 आई की वजह से 6.5 टाइम्स 10⁻⁵ न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। ठीक है, तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस पे आते हैं। 3.6 टाइम्स 10⁻⁵ जो कि सही नहीं है, 1.8 टाइम्स 10⁻⁵ सही नहीं है, 1.3 टाइम्स 10⁻⁵ सही नहीं है, 6.5 टाइम्स 10⁻⁵ बिल्कुल सही है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।